GKG YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about fundamental rules and supplementary rules. So far we have discussed up to fundamental rule 52, and now we are going to discuss about fundamental rule 53, that is payment during suspension, and fundamental rule 54, that is related to reinstatement. So more has been discussed about the suspension. Master video on the suspension has been released just before 2 to 3 videos. It is available on the channel. You can go through. Almost each and every point has been discussed in the suspension, right from A to Z. Everything is covered in the suspension. You can go through it as a matter of fundamental rules. We will discuss little bit more here also, and that is payment during suspension. So क्या होता है, फंडामेंटल रूल 53 जो डिस्कशन करता है कि पेमेंट जो मिलेगा सस्पेंशन के दौरान में वो कितना मिलेगा. A government servant under suspension or deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority shall be entitled to the following payments, namely. So सस्पेंशन क्या होता है, डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है, इसकी चर्चा हम पहले के क्लास में कर चुके हैं. अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि उनको जो पेमेंट मिलेगा ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड उसको क्या 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 मिलेगा. सबसे पहले तो ये चीज़ है कि सैलरी नहीं मिलती है. जितने समय में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंड रहते हैं उतने समय में सैलरी नहीं मिलती है. उतने समय में उनको सब्सिस्टेंस अलाउंसेस मिलता है. Subsistence allowances is almost 50% of the salary for the first 90 days. In the case of a commissioned officer of a Indian medical department or a warrant officer in civil employ who is liable to revert to military duty, the pay and allowances to which he would have been entitled had he been suspended while in military employment will apply. In the case of any other government servant, a subsistence allowance at an amount equal to the leave salary which the government servant would have drawn if he had been on leave on half average pay, that means 50% of leave salary. Subsistence allowances is related to leave salary. So 50% of leave salary. In addition to that, dearness allowances is also permissible, provided that where the period of suspension exceeds 3 months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension. So क्या करना है, जब 90 डेज से ज़्यादा बढ़ता है तो उसका रिवीजन होता है. Provided that where the period of suspension exceeds 3 months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first 3 months as follows. First 3 month में half pay of leave salary मिलेगा, that is known as subsistence allowances. सब्सक्वेंट डेज के लिए जितने दिन के लिए बाद में सस्पेंड किए जाते हैं, एक्सटेंशन होता है सस्पेंशन का, उसके लिए रूल क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस मे बी इंक्रीज्ड बाय ए सुटेबल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50%. कहने का मतलब कि 50% से आपका अमाउंट बढ़ सकता है. पहले अगर 100 रुपीज़ आपका लीव सैलरी होता था, उस लीव सैलरी का 50% 50 रुपीज़ मिलता था सस्पेंशन पीरियड में, तो 3 मंथ के बाद से नॉट एक्सीडिंग 50% मतलब 25 रुपीज़ और ऐड कर दीजिए, अप टू 75 रुपीज़ मिल सकता है. If in the opinion of the said authority the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing not directly attributable to government servant. So जो भी डिले हो रहा है सस्पेंशन में, the prolonged reason for reasons to be recorded, that reason in the opinion of the said authority the period of suspension has been prolonged
एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से प्रोलॉन्ग किया गया है, इंडिविजुअल के रीजन से प्रोलॉन्ग नहीं किया गया है, तब उनकी सैलरी 50% और सब्सिस्टेंस अलाउंसेस 50% और बढ़ा दिए जाएंगे, 75 रुपीज़ हो जाएंगे। सेकेंड क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस मे बी रिड्यूस्ड बाई ए सुटेबल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50% of the subsistence allowance admissible during the period of the first 3 months if in opinion of the said authority the period of suspension has been prolonged due to reasons to be recorded in writing directly attributable to the government servant। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के किसी कार्य के चलते, किसी उनके ऑब्स्टेकल के चलते सस्पेंशन पीरियड का एक्सटेंशन किया जाता है, तो वैसे कंडीशन में अप टू 50% सैलरी और भी रिड्यूस की जा सकती है। पहले 50 मिलता था, अब अप टू 25 मिलने लगेगा। पेमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन की बात हो रही है, सब पैरा 3 में है। द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस विल बी बेस्ड ऑन द इंक्रीज्ड और एज द केस मे बी द डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस एडमिसिबल। अगर 75% होता है तो उसके अनुसार डियरनेस अलाउंस मिलेगा, अगर 25% होता है तो उसके अनुसार डियरनेस अलाउंस। एंड इट इज 75% इज मैक्सिमम, it can be 50% to 75%, it can be 60%, 70%, up to 75%, cannot be 76%. 25% is minimum, it can be from 50% to 25%, it can be 40%, 35%, 30%, up to 25%, not less than 25%. Any other compensatory allowances admissible from time to time on the basis of pay on which government servant was in receipt of the date of suspension subject to the fulfillment of the other conditions laid down for the drawal of the such allowances। So compensatory allowances अगर लगता है कि उसके लिए चाहिए तो पे होगा। No payment under sub rule 1 shall be made unless the government servant furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vacation। कहने का मतलब ये हुआ कि सस्पेंशन पीरियड जो है ये टेम्पोररी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज है, टेम्पोररी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। सो इस पीरियड में उनको सब्सिस्टेंस अलाउंसेस दिया जा रहा है। he is suspended temporarily for the temporary period but still he is a government servant, so he has to follow all the rules and regulations of the government servant। और इस पीरियड में सब्सिस्टेंस अलाउंसेज उनको तभी मिलेगा जब वो एक सर्टिफिकेट फर्निश करेंगे कि ये जिस पीरियड में उनको ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा जा रहा है, उस पीरियड में वो दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट उनसे लेना पड़ेगा। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो सब्सिस्टेंस अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। सब्सिस्टेंस अलाउंसेज को ड्रॉ करने के लिए सर्टिफिकेट उनको मंथली बेसिस पे फर्निश करना पड़ेगा दैट ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन। तो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। भगवान न करे किसी के ज़रूरत पड़े ये, लेकिन समझना तो है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए समझना है, एग्ज़ाम पर्पस के लिए समझना है, एजुकेशन पर्पस के लिए समझना है। तो ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट टू बी फर्निश्ड बाय द सस्पेंडेड ऑफिशियल अंडर फंडामेंटल रूल 53(2)। आई के बाद से नेम हो जाएगा, नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग बीइंग प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय ऑर्डर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो वाइल होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, और यहाँ पे कर देंगे I have not been employed in any business, profession or vocation for profit, remuneration, salary during the period for the month of, वहाँ पर मंथ का नाम देंगे, साइन करेंगे, अपना डिटेल लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देने के बाद ही सब्सिस्टेंस अलाउंसेस ड्रॉ होते हैं, मिलते हैं। ऑर्डर फॉर रीइंस्टेटमेंट, ऐसा है सिविल सर्विसेज में एक रीइंस्टेटमेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगर किसी को डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, वो अपील में जाता है, चाहे वो कैट में जाता है, और वहाँ से जो ऑर्डर था डिसमिसल का, रिमूवल का, उसको क्वैश कर दिया जाता है, तो क्या करेंगे, उसको, उस व्यक्ति को रीइंस्टेट करेंगे, दोबारा उसको सर्विस मिलेंगे। एंड वही फंडामेंटल रूल 54 में बातें हो रही हैं। When a government servant who has been dismissed, removed or compulsorily retired is
reinstated as a result of appeal or review, or would have been so reinstated but for his retirement on superannuation while under suspension or not, the authority competent to order reinstatement shall consider and make a specific order regarding the pay and allowances to be paid to the government servant for the period of his absence from duty, including the period of suspension preceding his dismissal, removal, compulsory। कहने का मतलब ये हुआ कि रीइंस्टेटमेंट करते समय ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सर्विसेज बाकी हों तो वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि रीइंस्टेट तो किया जा रहा है बट ही हैज़ रिटायर्ड, ही हैज़ सुपरएनुएटेड, तो सुपरएनुएटेड हो रहे हैं तो उनको बैक डेटेड रीइंस्टेट किया जाता है। whether or not the said period shall be treated as period of spent on duty। जो रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर में मेंशन करना है कि जो प्रीवियस पीरियड है उसको ड्यूटी में काउंट किया जाएगा कि नहीं। अगर ड्यूटी में काउंट किया जाएगा तो पूरे सैलरी एंड अलाउंसेज पे करने पड़ते हैं। Where the authority competent to order reinstatement is of the opinion that the government servant who had been dismissed, removed or compulsory retired has been fully exonerated, the government servant shall fully exonerated मतलब दोष मुक्त हो गए। जो भी एलिगेशन था उस एलिगेशन से वो कन्विक्ट नहीं हो पाए, वो दोष मुक्त हो गए, पनिश नहीं हो पाए। अगर वो पूर्णतः दोष मुक्त हो जाते हैं तो he be paid the full pay and allowances to which he would have been entitled। तो पूरा फुल पे एंड अलाउंसेज उनको मिलेगा, ऐसे मिलेगा जैसे वो कभी डिसमिस नहीं हुए थे, रिमूव नहीं हुए थे, कंपलसरी रिटायर नहीं हुए थे, सस्पेंड नहीं हुए थे। In a case falling under sub rule 2, the period of absence from duty including the period of suspension including preceding dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be shall be treated as period spent on duty for all purposes। So जहाँ भी वो अपने दोष मुक्त हो जाते हैं, उनका दोष सिद्ध नहीं होता है, वहाँ पर जितनी पीरियड तक के वो नहीं रहे ड्यूटी में बिकॉज ऑफ सस्पेंशन, डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, वो सारा पीरियड एज ए ड्यूटी काउंट की जाएगी फॉर ऑल पर्पसेस। लीव अंडर सस्पेंशन नहीं मिलता है, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन का कैसे होता है ये हम सस्पेंशन वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये सारे जितने भी ये सस्पेंशन वाले चीज़ें हैं ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड एक्सटेंशन इन सर्विस बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ 60 ईयर से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है। 57 डिलीटेड है और खुश हो जाइए 58 से लेके 104 तक डिलीटेड है, 105 से लेके 107 तक डिलीटेड है। कहने का मतलब कि 57 से लेकर के 107 तक 50 रूल्स जो है डिलीटेड है, इन्हें में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज का नीति श्लोक, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सपात क्रूरतर खलः मंत्र औषधय शबशः सर्प खलः केन निर्वायते। सांप निष्ठुर होता है और दुष्ट भी निष्ठुर होता है, तथापि दुष्ट पुरुष सांप की अपेक्षा अधिक निष्ठुर होता है, क्योंकि सांप को तो मंत्र और औषधि से वश में किया जा सकता है, परंतु दुष्ट का निवारण कैसे किया जा सकता है। इसलिए जब सांप में और दुष्ट व्यक्ति में तुलना की जाए तो दुष्ट व्यक्ति सांप से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि सांप को तो मंत्र के द्वारा या औषधि के द्वारा वश में किया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को किस तरीके से उसका निवारण किया जा सकता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। Please do subscribe, like, share and comment so that you can get the instant notification। बहुत कम लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहा है। वीडियो अपलोड होने की 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी अगर कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है वे सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर ये बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जो कोई भी हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो उन सब का। डिस्क्लेमर क्या है, इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉज शैल प्रिवेल।